स्टार्ट करो। टाइम तो हो गया सर। हाँ, हाँ सर, टाइम तो हो गया है। ओके सर। Dear student, today we are going to discuss the corrosion of the metal, corrosion of the non-metal, corrosion of the plastic. So today topic of discussion is corrosion. Corrosion is very important phenomena in metals, non-metals, and any other materials. So today we discuss what is the corrosion, how it affect the metal stage, and how it's affect the behavior, how it affect metal property, how it's destroy the metal in different by different phenomena. So in this lecture we discuss all about the corrosion. So, corrosion is a deterioration phenomena. They deteriorate the material property by chemical reaction. First we discuss what is the corrosion, what is the type of corrosion, then what is the mechanism of corrosion. Then we discuss how it affect the property of the material. So one by one we discuss all the things. So corrosion is very important for all of us. It destroys most of the material property and most of the economy loss by the corrosion. So need of corrosion, study of corrosion is very important because it directly influences the material property. So you must know the corrosion, what is the corrosion, what affects the corrosion, how corrosion is happen, and what is the exact final output of the corrosion, and why this is happen, and how we control the corrosion. So in this lecture we study all these things and we discuss all the things one by one. So now I share my PPT. This is your second last chapter. So there are two chapter left after the corrosion. One is the metal and alloy, which we discuss tomorrow, and next is the nature of light, which we discuss on the Friday. So we have the three lecture, and we discuss all the three chapter in this three lecture. So after that, your syllabus will be finished. So first we start with the introduction of corrosion. What is the corrosion? What is the definition of corrosion? Why this is why corrosion is happen and where corrosion is happen? तो corrosion is a process of formation of compound. corrosion जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड फॉर्म करता है. जो corrosion का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आयरन ऑक्साइड. जब आपने घर में आयरन जो देखते हैं, जो घरों में जो दरवाजे बने होते हैं या ग्रिल बना होता है, तो उस पे रस्ट लग जाता है. जो रस्ट लग जाता है उसको हम करोजन बोलते हैं. उसको इंजीनियरिंग टर्म में उसको करोजन बोलते हैं. उसमें वो करोड हो गया, वो रस्टिंग हो गया. तो करोजन में क्या होता है, कंपाउंड बन जाता है. उसमें आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, FeO2 का आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड बन जाता है जो आयरन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके आयरन ऑक्साइड बना लेता है. FeO2 या Fe2O3 इस तरह से कंपाउंड बन जाता है. और वो कंपाउंड क्या करता है, उस आयरन के सरफेस को रिमूव करना शुरू कर देता है. जैसे जैसे वो रिमूव करेगा उसमें स्मॉल होल्स बनना शुरू हो जाएगा, और वो स्मॉल होल्स जो है पूरे आपके दरवाजा को, डोर को, पूरे ग्रिल को, पूरे विंडो को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो corrosion is the process of formation of compound of pure metal by the chemical reaction. ये हमेशा एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है. जैसे जैसे ही आप किसी सरफेस पे वाटर डालोगे, किसी सरफेस पे सनलाइट होगा, किसी सरफेस पे ऑक्सीजन पड़ेगा. ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. तो जैसे ही उसको हम इन्वायरमेंट में रखेंगे किसी भी मेटल को, तो इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे वो रिएक्ट करेगा. और रिएक्ट करके क्या करेगा, एक कंपाउंड बना लेगा. केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद वो कंपाउंड बन जाएगा. और जैसे ही वो कंपाउंड बनेगा
तो उसमें कंपाउंड बनने के कारण वो उसमें रस्टिंग स्टार्ट होगा और धीरे धीरे रस्टिंग के साथ वो उसमें मेटल रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा। रस्टिंग के साथ मेटल रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा। तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ प्योर मेटल बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटालिक सरफेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट क्या क्या हो गया, मेटालिक सरफेस और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, आपको नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। जिस भी मेटल को जिस भी इन्वायरमेंट में डालोगे वहां कुछ ना कुछ कोरोजन होता है। जैसे अगर आप वाटर में डिप कर दोगे, जैसे रिफाइनरी जो होता है, रिफाइनरी में जो पाइपलाइन होता है, तो पाइपलाइन जो सी वाटर के अंदर होता है, तो सी वाटर में भी NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड आपको इन्वायरमेंट की तरह वर्क करता है। और जो उसमें आयरन का अगर आपने पाइप बनाया है, या आपको अपने गल्वेनाइज आयरन का पाइप बनाया है, या एल्युमिनियम का पाइप है, जिसका भी पाइप आपने बनाया है वो कोरोड होगा ड्यू टू द NaCl। सी वाटर में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड आपका इन्वायरमेंट हो गया। और प्योर सरफेस, मेटालिक सरफेस आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, जो भी आयरन मेटल है सारे आपको मेटल्स हो गए। तो कोरोजन तभी होगा जब दो चीज होगा, एक तो मेटल होगा और एक इन्वायरमेंट होगा। तो कोरोजन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कब होगा, जब मेटल और इन्वायरमेंट होगा। इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। दो प्रोसेस होता है, एक में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक होता है रिडक्शन प्रोसेस। यानी रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट कॉज लॉस ऑफ मेटल। मेटल को लॉस कर देता है। जैसे आपने 1 kg का मेटल है, 1 kg का मेटल है, तो धीरे धीरे करोड़ होकर वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। पहले करोड़ होगा, पहले 1 kg था तो 1.91 हो गया, फिर 1.92, सॉरी 0.99 हो गया, फिर 0.91 हो गया, फिर 0.9 हो गया, फिर 0.8 हो गया। इस तरह से मेटल लॉस होना उसमें शुरू हो जाएगा। यानी इसके ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसमें मेटल लॉस होता है। मेटल लॉस होगा तो धीरे धीरे वो आपको कोरोड होगा, उसमें जंग लगेगा और वो फेल्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोरोजन जो क्या करता है, मटेरियल को फेल कर देता है। अब आपने कोई 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, आपने कोई बनाया और उसमें कोई पार्ट्स बना दिया। कोई पार्ट्स जो है ऑयल में काम करता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर है, उसमें ऑयल हम डालते हैं, तो ऑयल क्या करेगा, इन्वायरमेंट का काम करेगा। अब पिस्टन सिलेंडर आपको अल्युमिनियम का बना हुआ है तो मेटल हो गया, उसमें कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं होगा, अंदर ही अंदर कोरोजन होगा, एक बार सडनली वो ब्लास्ट होकर फट जाएगा। तो आप जब उसको इन्वेस्टिगेट करोगे तो पता चलेगा कि इसमें कोरोजन के कारण ये ब्लास्ट करेगा। इसमें आपको पता नहीं चला इसमें कोरोजन हो रहा था, तो आपको इसीलिए उस पर हम मेटल का कोटिंग करते हैं। देखते हो जब दरवाजे डोर बनाते हैं या फिर आपको जो भी विंडो बनाते हैं उसमें हम कोटिंग कर देते हैं, कि जब कोटिंग कर देंगे तो उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा तो कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। Hence, disintegration of metal by its surrounding chemicals through a chemical reaction on the surface of the metal is called corrosion. Disintegration of metal by surrounding chemicals. Surrounding chemicals के बाद जो disintegration होता है, इंटीग्रेट कर जाना, कंबाइंड हो जाना, केमिकल थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा केमिकल, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तभी कोरोजन होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। अगर ऐसा मेटल है जो इन्वायरमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो प्लास्टिक में कोरोजन बहुत कम होता है। इसीलिए प्लास्टिक का फैन वगैरह, प्लास्टिक का डोर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का जितने भी डोर वगैरह बन रहे हैं उसका वो जो बहुत केमिकली रिएक्शन उसका बहुत कम होता है, इसलिए उसमें उसका लाइफ बहुत ज्यादा है, उसमें कोरोजन नहीं होता, उसमें रस्टिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। रस्ट का फॉर्मेशन जो है सरफेस ऑफ आयरन जो है वो आपको फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है रस्टिंग का, कोरोजन का। कोरोजन को ही रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग और कोरोजन दोनों एक ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर को जब आप इन्वायरमेंट में रख दोगे, ऐसे ओपन एयर में रख दोगे, तो कॉपर के ऊपर देखिएगा एक आप कॉपर के ऊपर एक ग्रीन फिल्म बन जाता है। जो ग्रीन फिल्म जो है उसको कोरोजन को बताता है कि इस कॉपर में कोरोजन हो गया।
the responsible factor for corrosion of metal are the metal itself. जो मेटल जो होता है वो इटसेल्फ होता है कोरोजन को अकर करने के लिए. कोरोजन जो होगा, कोरोजन जो हैपन होगा, कोरोजन जो अकर होगा, वो कोरोजन के इटसेल्फ प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसी के कारण होता है. द एनवायरमेंट, केमिकल्स, टेम्परेचर एंड डिजाइन. उसके एनवायरमेंट, उसके केमिकल, उसकी डिजाइन. मेटल इटसेल्फ, एनवायरमेंट, केमिकल्स, टेम्परेचर एंड डिजाइन, ये 4 फैक्टर है जिसपे कोरोजन डिपेंड करता है. मेटल इटसेल्फ, जैसे आयरन में ज्यादा कोरोजन होता है, एल्युमिनियम में थोड़ा कम कोरोजन होता है, और प्लास्टिक में बिल्कुल ही कोरोजन नहीं होता है. वैसे ही एनवायरमेंटल केमिकल, किस टाइप के केमिकल यूज करते हैं. जैसे एसिड में ज्यादा कोरोजन होता है, बेस है उसमें कम कोरोजन होगा. सोडियम क्लोराइड में कम कोरोजन होगा, लेकिन जैसे एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इसमें ज्यादा कोरोजन होगा. टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करोगे, उसकी कोरोजन की प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे. कोरोजन ज्यादा हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा भी हो सकता है. जनरली हाई टेम्परेचर पे कोरोजन ज्यादा होता है. एंड डिजाइन, डिजाइन पे भी उसका किस टाइप का डिजाइन है, वो डिजाइन के ऊपर भी कोरोजन आपको डिपेंड करता है. दो सरफेस मीट करता है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे, वहां भी कोरोजन होता है. जो मेटिंग सरफेस होता है वहां पे कोरोजन ज्यादा होता है. जहां पे दो सरफेस कंबाइंड होता है, जिसको कंबाइंड बोलते हैं. डिफरेंट थ्योरी ऑफ कोरोजन, 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी है कोरोजन का. फर्स्ट थ्योरी है एसिड थ्योरी, सेकंड है ड्राई और केमिकल कोरोजन, थर्ड है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन. तो एसिड थ्योरी में क्या है कि जो कोरोजन आपको एसिड के कारण होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, इन सब एसिड के कारण जो कोरोजन होता है वो एसिडिक थ्योरी या एसिड थ्योरी कोरोजन के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें बहुत ज्यादा फास्ट कोरोजन होता है. और क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एसिड है वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है. बहुत ज्यादा फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए इसमें कोरोजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है. ड्राई और केमिकल कोरोजन, जो एसिड से कम केमिकल है, एसिड से जो बहुत ज्यादा एसिडिक केमिकल है तो उसमें ज्यादा कोरोजन होता है. उससे जो कम है, जैसे NaCl है, वो भी एक तरह का आपको केमिकल है. NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और वो एक तरह का ड्राई कोरोजन करता है, सूखा कोरोजन उसमें होता है. अभी पढ़ेंगे एक करके तो सबको समझ में आएगा. गैल्वेनिक कोरोजन, गैल्वेनिक में मीनिंग होता है गैल्वेनाइज बनाना, गैल्वेनाइज आयरन कर देना. जैसे एक आपने एल्युमिनियम ले लिया और एक आपने क्रोमियम ले लिया, और दोनों को सरफेस को मिला के कोई एक सरफेस बना दिया, कोई एक पार्ट बना दिया. यानी दो मेटल का कोई कंबाइन करके एक पार्ट बना दिया. दो मेटल को कंबाइन करके एक पार्ट बना दिया, जिसमें दोनों मेटल डिफरेंट होंगे. एक आयरन होगा, एक क्रोमियम होगा. तो जिस पॉइंट में उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वहां पे कोरोजन हो जाता है. जैसे नट एंड बोल्ट में, अगर नट और बोल्ट है, नट एंड बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं, जब नट एंड बोल्ट को खोलते हो तो देखते हो उसके अंदर कोरोजन हो गया रहता है, पूरा ब्लैक बन जाता है, या आपको येलो बन जाता है, वो कोरोजन हो जाता है. यानी वो मेटिंग सरफेस है, वो कोरोजन हो जाता है. तो वहां पे तो सेम मटेरियल होता है, तो सेम मटेरियल में भी हो जाता है, और डिफरेंट मटेरियल होगा तो भी आपको कोरोजन हो जाएगा. उसको हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं. और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा कोरोजन कराते हैं. जैसे किसी मटेरियल का निकालना है कि इस मटेरियल में 10 साल बाद कितना कोरोजन होगा. जैसे आप कोई पाइपलाइन बना रहे हो जिसमें आपको ऑयल सप्लाई करना है, सी वाटर से, सी में जहां से आप पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल को निकाल के बहुत दूर तक उसको सप्लाई किया जाता है. आपने जो सप्लाई कर रहे हो, अगर आपको निकालना है कि इस पाइपलाइन में 10 साल बाद कितना कोरोजन होगा, अगर आप नहीं निकालोगे तो सोचोगे कि अच्छा 10 साल तो इसका लाइफ है, लेकिन वो पता चला कि 5 साल में ही कोरोजन हुआ, 5 साल में ही उसमें होल बन गया और वो फेल कर गया. तो अगर आपको निकालना है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद कितना कोरोजन होगा, तो उसके लिए एक मशीन आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि हम एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट सप्लाई करते हैं, और 1 घंटे में लैब में 10 साल की चीजों को 1 घंटे में हम डेवलप करते हैं. उस मटेरियल में कोरोजन को पैदा करते हैं, कोरोजन को बनाते हैं, कोरोजन को डेवलप करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं कि 10 साल बाद इसमें कितना कोरोजन होगा. फिर उससे उस मटेरियल का लाइफ को निकाला जाता है, इस मटेरियल कितने लाइफ तक सरवाइव करेगा. इससे आपको रिपेयर करने में या फिर आसानी रहता है, आप उसे मटेरियल प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो आपको जब पता चल जाएगा कि ये 5 साल में ही खराब हो जाएगा, तो 5 साल में ही आप उसको रिप्लेस कर दोगे, रिपेयर कर दोगे, ताकि आपको डैमेज नहीं हो, लीकेज नहीं हो, होल नहीं बने, ब्लास्ट नहीं हो. ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं. फर्स्ट है आपका एसिडिक थ्योरी. दिस थ्योरी सजेस्ट दैट corrosion of a metal is due to the presence of acid surrounding it.
ये जो थ्योरी आपको सजेस्ट करता है, जैसे एक मेटल हो गया, अब मेटल के आसपास आपने कुछ एसिड डाल दिया, तो जब भी एसिड होगा तो एक कोरोजन होगा। जैसे नाइट्रिक एसिड में आपने एक एल्युमिनियम का पीस को डाल दिया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड तो देखे ही होंगे, जो आज सल्फ्यूरिक एसिड आपको जो इजिली H2SO4 आता है, या HNO3 नाइट्रिक एसिड आता है। तो नाइट्रिक एसिड में आपने कोई मेटल, नाइट्रिक एसिड को जनरली हम ग्लास में स्टोर करते हैं, मेटल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल में स्टोर करोगे, मेटल के बोतल में स्टोर करोगे तो उसको कोरोड कर देगा, तो इसलिए उसको हम ग्लास में स्टोर करते हैं। ग्लास में कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि ग्लास जो है केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा तो कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन को होने के लिए तो सबसे पहला फेनोमेना है कि इसमें केमिकली रिएक्शन होना चाहिए। तो ड्यू टू इट्स प्रेजेंस ऑफ एसिड सराउंडिंग इट, according to this theory, iron is corroded by the atmospheric carbon dioxide, moisture and oxygen. इस थ्योरी से ऑल्सो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के कारण भी हमारा जो है आपको कोरोजन होता है। कोरोजन प्रोडक्ट्स आर द मिक्सचर ऑफ FeHCO3 अगर HCO3 है तो FeHCO3, आयरन आपका मेटल हुआ और HCO3 आपका इसमें एसिड हो गया, तो FeHCO3 FeOH CO3 FeOH का होल 3, ये तीनों जो है आपको एसिडिक थ्योरी में एक कंपाउंड जो है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन कंपाउंड। कोरोजन कंपाउंड जो फॉर्म करता है, केमिस्ट्री है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको सिर्फ नाम देख लो, ज्यादा आपको इसको डीप में। उसके बाद कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, टोटल केमिस्ट्री है, आप 12th में स्टडी किए हो कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आयरन है, आयरन जो है CO2 के साथ कंबाइन करेगा और H2O के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। आयरन प्लस 2CO2 प्लस H2O प्लस हाफ O2 कंबाइन करके FeHCO3 का होल 2 बनाएगा। आयरन HCO3 का होल 2 बना देगा, फिर आयरन HCO3 का होल 2 फिर H2O से कंबाइंड होगा, फिर O2 से कंबाइंड होगा, फिर 2FeOH CO3 बनाएगा। इस तरह से अलग अलग कंपाउंड बनता है, केमिकली रिएक्शन होता है। तो जनरली ये सब आपको आजकल आपको इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसे ही आप किसी मेटल को कोरोजन में डालोगे तो आपको बता देगा कि वो कौन सा कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा। जैसे Fe2O3 बनेगा, FeCO3 बनेगा, FeOH का होल 2 बनेगा, क्या बनेगा वो ऑटोमेटिक मशीन आपको बता देगा कि इसमें कौन सा कोरोजन प्रोडक्ट आपको बनेगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल थ्योरी ऑफ द कोरोजन। केमिकल थ्योरी में हम क्या स्टडी करते हैं, according to this theory, corrosion of the surface of metal is due to the direct reaction of atmospheric gas. एसिडिक थ्योरी में केमिकल के साथ रिएक्शन हो रहा था, और केमिकल थ्योरी में एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक गैस कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, फ्यूम्स होता है, फ्यूम्स स्मोक जो हो सकते हैं, फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स विथ मेटल्स। जो मेटल के साथ जितने भी गैसेस हैं, जैसे CO2 है, O2 है, N2 है, CO है, ये सारे जो गैस हैं, एक गैस जब मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, और ये केमिकल रिएक्शन जो आपको कोरोजन कंपाउंड बना देंगे, और धीरे धीरे मेटल का रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेटल का जब रस्टिंग स्टार्ट होगा तो मेटल उसमें से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। आपने 1 kg मेटल लिया है और पता चला कि धीरे धीरे मेटल रिमूव होके वो धीरे धीरे उसका वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, तो आपको कभी भी वो आपका ब्रेक कर सकता है। आपने कोई पार्ट्स बनाया है, उसमें से मेटल रिमूव होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे कभी भी वो ब्रेक कर सकता है, उसमें होल बन जाएगा, उसमें होल्स बन जाएगा, तो उसमें क्रैक आ जाएगा, तो सडनली वो ब्रेक कर जाएगा। आपका पूरा अपरेटस जो है, आपका पूरा मशीन जो है शट डाउन हो सकता है। अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी व्हीकल है तो सडनली आपको बंद हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोरोजन बहुत ही डेंजरस होता है। तो कोरोजन को आइडेंटिफाई करना, कोरोजन को प्रिडिक्ट करना, कोरोजन को कैसे कोरोजन होगा, कितना कोरोजन होगा, एक कोरोजन कितना लॉस करेगा, कौन सा कोरोजन कंपाउंड बन रहा है, हम कैसे कोरोजन को रोक सकते हैं, सभी को अच्छे से स्टडी करके फिर आपको अच्छे से उसमें थ्योरी अप्लाई करना, कौन सा कोरोजन हो रहा है और इसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसकी प्रिवेंशन में है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कोरोजन हो रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कोरोजन हो रहा है, तो किस टाइप का कोरोजन हो रहा है, एसिडिक कोरोजन हो रहा है, केमिकल कोरोजन हो रहा है, ड्राई कोरोजन हो रहा है, गैल्वेनिक कोरोजन हो रहा है।
जब आप ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आप उसको प्रिवेंशन टेक्निक लगाओगे कि कौन कौन सा प्रिवेंशन टेक्निक उसमें हम लगा सकते हैं। The extent of corrosion of particular metal depends on the chemical affinity of the metal towards the reactive gas। जो केमिकल जो मेटल है उसकी वो कितना फास्ट रिएक्शन करता है गैस के साथ, वो जो है रिएक्शन आपको उस पर डिपेंड करता है। जैसे आयरन जो है बहुत फास्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जैसे ही आप आयरन को ऑक्सीजन के साथ रखोगे बहुत ही फास्ट आपको वो रिएक्ट कर लेता है। The extent of corrosion particular metal depends on the chemical affinity। chemical affinity केमिकल कितनी फास्ट रिएक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Oxygen is mainly responsible for the corrosion of most metallic substance when the compared to other gases and chemicals। ऑक्सीजन जो है सबसे फास्ट जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेनली आयरन के साथ। आयरन ऑक्साइड जो बनता है फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं Fe2O3, Fe3O4, FeO, जितने भी है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 बन गया, Fe3O4 बन गया, ये सारे कंपाउंड हैं, ये बहुत फास्ट बनता है और सबसे ज्यादा रस्टिंग जो आयरन में होता है इसी कारण से होता है। देन देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ केमिकल करोजन। केमिकल करोजन जो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेशन करोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन करोजन होगा। करोजन बाय अदर गैसेज जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन होगा। लिक्विड मेटल करोजन, लिक्विड और मेटल के साथ, जैसे कोई ऑयल है आपका, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीज, ये सब है, उसमें आपने कोई मेटल डाल रखा है, जैसे 4 व्हीलर में जो कंटेक्ट होता है, 4 व्हीलर में हम ग्रीज, मोबिल, ऑयल सब डालते हैं तो मेटल सरफेस उसके साथ टच करता है तो वहां भी करोजन होता है, तो लिक्विड मेटल करोजन होता है। लिक्विड और मेटल का सरफेस को टच करते हैं तो लिक्विड मेटल करोजन होता है। ऑक्सीडेशन करोजन में क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। सम ऑफ द मेटल डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के अब्सेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो Fe2O3, Fe3O4, FeO बन जाएगा, जिससे वो धीरे धीरे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, 2 टाइप के मेटल होता है, अल्कली और अल्कलाइन, जो आपको रिएक्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज अल्कली मेटल एंड व्हाट इज अल्कलाइन मेटल। आपको मेटल्स एंड एलॉयज पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। हमेशा ऑक्साइड बन जाता है। देखिए कोरोजन में आपको याद रखना है कि जब भी कोरोजन बनेगा, कोरोजन होगा, तो कोरोजन होने के बाद ऑक्साइड बन जाता है। जिसका भी मेटल होगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। Fe है, FeO बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, FeO बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। वो कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है। कितना फास्ट रिएक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। Metals like Ag, Au and Pt are not oxidized as they are noble metal। Ag है, सिल्वर है, Au है, Pt है, प्लेटिनम है, ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये नोबल एलिमेंट है, ये इनके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। देखिए नीचे आपको कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, M से एरो मार्क किया, M से M प्लस Ni इलेक्ट्रॉन माइनस, N इक्वल टू 1 है, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से O माइनस, तो 2M प्लस हाफ O2 M2O। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है मेटल में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है इसी तरह से रिएक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां ट्रांसफर होगा और फिर वहां से वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिसे मेटल लॉस हो जाता है। और मेटल लॉस होगा तो मास लॉस होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मास लॉस होगा, और मास लॉस होगा तो कोरोजन होगा। During oxidation of metal oxide is formed as a thin film on the metallic surface। thin film के रूप में मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉर्म कर जाता है और जो प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर कोरोजन से वो प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन टाइम देखिए कुछ टाइम तक तो कोरोजन होता है, उसके बाद एक थिन लेयर बन जाता है जो लेयर आपको फर्दर कोरोजन से भी रिस्ट्रिक्ट करता है। सो आगे उसको पढ़ेंगे कैसे वो लेयर फॉर्म होता है और कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है। If diffusion is either oxygen or metal is across the layer, further corrosion is possible। Thus, the layer of metal oxide play an important role for process of corrosion। अगर जो metal oxide का जो layer बना है, अगर फिर से वो destroy हो जा रहा है, फिर से corrosion हो जाएगा। अगर वो destroy नहीं हो रहा है तो corrosion नहीं होगा। तो metal oxide का जो layer है वो बहुत ही important role play करता है corrosion को happen होने के लिए, process happen होने के लिए। Oxides of Pb,
एल्युमिनियम, एसएन जो है, एसएन होता है, आर स्टेबल एंड हेंस इनहिबिटर फर्दर कोरोजन। ये तीनों जो है इसमें इनहिबिटर की तरह काम करता है। इनहिबिट मीन्स होता है रोकना, इनहिबिट फर्दर कोरोजन को रोकता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। दे फॉर्म ए स्टेबल टाइटली एडहेरेंट ऑक्साइड फिल्म। ये बहुत ही एडहेरेंट और ऑक्साइड फिल्म बना देता है जो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। In case of porous oxide film, atmospheric gas passes through the process and react with the metal, and process of corrosion continues to occur till the entire metal converted into the oxide. ये corrosion जो है continuous आपको होते रहेगा जब तक सारे metal oxide में convert नहीं हो जाए। तो देखते हो कोई जो विंडो होता है या डोर होता है, अगर उसको हम 10 to 20 ईयर तक छोड़ देते हैं, तो 10 to 20 ईयर तक छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक जो पूरे ग्रिल, पूरे आपको डोर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो पूरे डोर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका रीजन ये होता है कि उसमें कंटिन्यूअस कोरोजन हो रहा था, और वो कोरोजन पूरे उस सरफेस को ही खत्म कर दिया, पूरे सरफेस ही डिस्ट्रॉय हो गया, और आपको ग्रिल अपने आप वो इस तरह का, कैसे क्या बोलते हैं उसको, गल के और गिर जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम उसको बार बार पेंट करते हैं। बार बार पेंट नहीं करोगे तो कोरोजन होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पेंट बहुत ही नेसेसरी है। बार बार जब हम पेंट कर देते हैं तो पेंट कर देने के बाद क्या होगा, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें ऑक्साइड नहीं बनेगा। ऑक्साइड नहीं बनेगा तो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। Porous oxide layer is formed by all alkali and alkaline earth metal. Molybdenum forms a volatile oxide film of MoO3. मोलिब्डेनम जो है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड बनाता है जो स्टेबल होता है। मोलिब्डेनम एक तरह का इनहिबिटर का काम करता है, वो ऑक्सीडेशन को रोकता है, वो कोरोजन नहीं होने देता है। AuAgPt unstable oxide layer which decompose soon after the formation, thereby preventing further corrosion. Au है, G है, Pt है, जो है फर्दर कोरोजन को नहीं होने देता है। कोरोजन बाय द अदर गैसेज जैसे Cl2, SO2, H2S, NOx, जो इतने टाइप के जो गैसेस हैं, इसमें जो कोरोजन होता है, इन ड्राई एटमॉस्फेरिक these gases react with metal and forms corrosion product which may protective or non-protective. Dry Cl2 reacts with the Ag and forms AgCl, which is protective layer, while SnCl4 is volatile. SnCl volatile होता है। In petroleum industry, high temperature hydrogen sulfide steel forming FeS, ferrous sulfate जो बनाता है, which is porous and होता है आपको। तो गैसेस जो है, गैसेस भी आपको कोरोजन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गैस भी जो है कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिक्विड मेटल, जो लिक्विड मेटल कोरोजन है, सेवरल इंडस्ट्री इंटरनल पेनिट्रेशन के कारण भी उसमें कोरोजन होता है। एक है लिक्विड है और दूसरा मेटल है। जहां भी लिक्विड और मेटल कंबाइन, लिक्विड मेटल dissolve most metal by forming तो मरकरी को हमेशा ग्लास में स्टोर किया जाता है। अगर उसको मेटल में स्टोर करोगे तो मरकरी क्या होगा, उसको कोरोड कर देगा और आपको वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Chemical theory of corrosion. It is a common type of corrosion of metal. In this type of corrosion occurs when the metal comes in contact with conducting liquid or when two dissimilar metal are immersed or dropped particularly in solution. Two different conductive liquid or when two dissimilar metal का आयरन और एल्युमिनियम को दोनों को कांटेक्ट में लाओगे और दोनों आपको कंडक्टिंग लिक्विड के और बीच में लिक्विड होगा, कंडक्टिंग लिक्विड होगा और दोनों मेटल होगा। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें कोरोजन
थ्योरी में भी आता है वो। आयरन को और दूसरा मेटल अल्मीनियम हो और बीच में जो लिक्विड हो एक्टिव हो, तो जैसे ही वो तीनों कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस एज एनोड, जिसमें एक पार्ट जो है जो एनोड है, एक पार्ट जो जो कोरोड होता है, जो मेटल कोरोड होता है जिससे मेटल का लॉस होता है, वो एनोड के रूप में काम करता है। जिसमें मेटल जाके डिपॉजिट हो जाता है वो आपको कैथोड के रूप में काम करता है। इसमें एक कैथोड एनोड बन जाता है। जो सेल होता है, बैटरी होता है, बैटरी में भी ऐसा एनोड बन गया, दूसरा कैथोड बन गया, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर होता है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर होता है। Chemical and humidity act as a electrolyte. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मीडियम जो केमिकली केमिकल जो है वो एनवायरमेंट के रूप में काम करता है। और ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी एनोड पार्ट पे भी एनोड नहीं होगा। मैं एम के मिश्रा बोल रहा हूँ। एल्यूमिनियम है, कोई रांची पार्ट से। है, एक आधा पार्ट आयरन का है और आधा पार्ट एल्यूमिनियम का है। जो एक है एक जो उसमें बहुत से parts होते हैं। कर सकता है डिफरेंस और वेट होता है कोलेजन प्रोडक्ट्स हो जाए। डाइक्रोजन में कितने टाइप्स फैक्टर हैं जो क्या इफेक्ट कौन जो